welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta and guys, today we are going to discuss a very important yet very controversial topic, which is section 13(1)(a) and section 23(1)(a). इनकी simultaneous interpretation को हम discuss करेंगे आज in this lecture. But guys, before you watch this lecture, if you do not know what section 13(1)(a) and what 23(1)(a) of the Hindu Marriage Act is, please go and watch my previous lectures, क्योंकि इन sections पे मैंने एक अलग से separate videos बना रखी हैं. If you very well know what these two sections are in greater detail, then you can proceed further to watch this lecture. So guys, as always, if you're new to my channel and if you have not subscribed it yet, please subscribe to my channel right now. And yes, if you enjoy learning with me, you understand what I teach, please like all my videos and do let me know in the comment section below. So guys, let's get started with simultaneous interpretation of both these sections. Basically guys, what happened is कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे ऐसे केसेस आए जहां पे इन दोनों सेक्शंस की साइमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन करने को कोर्ट को कहा गया बिकॉज देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज टू सेक्शंस. तो हम एक केस लॉ की हेल्प से देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से हार्मोनियसली कॉन्स्ट्रू किया इन दोनों सेक्शंस के प्रोविजंस को. So guys, section 13(1)(a) talks about irretrievable breakdown of marriage. I hope आपको पता है कि इसके grounds क्या है. Non-compliance with the decree of restitution of conjugal rights for a period of a year or more and non-resumption of cohabitation after a decree of judicial separation for a period of a year or more. ये है आपका section 13(1)(a). If I talk about section 23, it talks about bars to matrimonial relief. लेकिन section 23 subsection 1 clause A talks about only a single bar, which is petitioner taking benefit of his own wrong or disability. अब आपको पता है कि हम ये bars in greater detail already discuss कर चुके हैं. section 23(1)(a) बोलता है कि no court shall pass a decree of divorce if the court comes to a finding that petitioner is taking benefit of his own wrong or disability. यानी कि if at any point of time कोर्ट को लगता है कि petitioner is in a way or the other taking benefit of his own wrong or disability, तो वहाँ पे उस इंसान को decree of divorce नहीं दिया जाएगा. अदरवाइज क्या होगा, unjust enrichment हो जाएगी. आई होप गाइस आपको ये पॉइंट्स क्वाइट क्लियर हैं. अब गाइस हुआ क्या कि there was a case named चमन लाल वर्सेस मोहिंदर देवी 1968 का ये केस है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का. यहाँ पे क्या हुआ गाइस, वाइफ ने क्या किया, कोर्ट के पास गई और पिटिशन फाइल करी. शी वाज अ पिटिशनर इन दिस केस अंडर सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955. आई होप आपको पता है कि सेक्शन 9 टॉक्स अबाउट restitution of conjugal rights. वाइफ ने कहा कि my conjugal rights have not been they have withdrawn, वो खत्म हो चुके, please help me restore those rights. So it was a kind of relief to that wife. कोर्ट ने क्या देखा कि there is no bar to it and all the essential elements of section 9 were fulfilled. इसीलिए उन्होंने क्या किया, वाइफ के फेवर में सेक्शन 9 के तहत डिक्री सुना दी जनवरी 1963 में. अब गाइस क्या हुआ, 1.5 साल बाद जुलाई 1965 में हस्बैंड कोर्ट में जाते हैं और दोबारा से वो पिटिशन फाइल करते हैं कि सेक्शन 13(1)(a) के तहत ऑन द ग्राउंड ऑफ इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज थ्योरी. हस्बैंड ने क्या कहा कि 1.5 साल हो चुका है, देयर इज नॉन कॉम्प्लायंस विद द डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स फॉर अ पीरियड ऑफ अ ईयर और मोर. 1.5 साल हो चुका है, हमारे जो कॉन्जुगल राइट्स थे वो अभी रिस्टोर नहीं हुए, इसीलिए दिस मैरिज इज इर्रिट्रीवेबली ब्रोकन डाउन. There is no merit in preserving intact the institution of marriage, better dissolve it. तो उन्होंने ये पिटिशन फाइल करी. अब गाइज लेकिन बाद में इन द सेंस कि जब फैक्ट्स पूरे खुल के आए तो कोर्ट को ये पता लगा कि हस्बैंड वाज द वन हु डिड नॉट मेक इवन अ सिंगल पॉसिबल अटेम्प्ट एट रिकॉन्सिलिएशन. हस्बैंड वाज द वन हु डिड नॉट कंप्लाई विद द डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स. इनफैक्ट गाइज वाइफ अकेली भी क्या करेगी, वाइफ वांटेड कि उसके कॉन्जुगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस रिस्टोर हो जाए और डिवोर्स की नौबत ना आए. लेकिन हस्बैंड वाज द वन जिन्होंने कोशिश ही नहीं करी. ही डिड नॉट कंप्लाई विद द डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स एंड ही डिड नॉट मेक इवन अ सिंगल पॉसिबल अटेम्प्ट एट रिकॉन्सिलिएशन. 1.5 साल वो ऐसे ही वेट करते रहे. 1.5 साल के बाद वो कोर्ट में जाते हैं, सेक्शन 13(1)(a) के तहत डिवोर्स की पिटिशन फाइल करते हैं. ट्रायल कोर्ट ने कहा कि हस्बैंड इज द वन हु इज टेकिंग बेनिफिट ऑफ हिज ओन रॉन्ग और डिसेबिलिटी. ट्रायल कोर्ट को जब पता लगा तो ट्रायल कोर्ट ने कहा कि हस्बैंड के पिटिशन को डिसमिस कर दिया जाएगा जो उन्होंने जुलाई 1965 में फाइल करी है अंडर सेक्शन 13(1)(a. ओनली ऑन द ग्राउंड दैट अगर हम इसको डिवोर्स दे देंगे देन हस्बैंड वुड बी टेकिंग बेनिफिट ऑफ हिज ओन रॉन्ग और डिसेबिलिटी. गलती उनकी थी कि उन्होंने कॉम्प्लायंस नहीं दिखाया टू अ डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स. 1.5 साल इसी तरीके से निकल चुका है. हस्बैंड की गलती थी तो हस्बैंड को हम अलाउ नहीं करेंगे अंडर सेक्शन 13(1)(a) कि उनको डिवोर्स दिया जाए, इसीलिए उनके पिटिशन को ट्रायल कोर्ट ने डिसमिस कर दिया ओनली ऑन दिस ग्राउंड दैट ही वाज द वन हु डिड नॉट try to make
अटेम्प्ट एट रिकॉन्सिलिएशन। लेकिन गाइज हस्बैंड के काउंसिल ने इसको अपील किया, हस्बैंड के काउंसिल को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने इसको अपील किया। जब वो कोर्ट में गई, इसको अपील किया ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को, तो हस्बैंड के काउंसिल ने बहुत ही अच्छी लाइन कही। उन्होंने सेक्शन 13(1)A की बहुत ब्यूटीफुल इंटरप्रिटेशन करी। उन्होंने कहा कि सेक्शन 13(1)A की सिर्फ और सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है कि अगर देर इज नॉन कॉम्प्लायंस विद द डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स और देर इज नॉन रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन आफ्टर अ डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन हैज बीन पास्ड फॉर अ पीरियड ऑफ अ ईयर और मोर, दैट इज सफिशिएंट इनफ फॉर अ कोर्ट टू ग्रांट डिवोर्स अंडर सेक्शन 13(1)A। मोरओवर सेक्शन 13(1)A की पहली ही लाइन बोल दी कि ईदर पार्टी कैन फाइल अ पिटिशन, कोई भी पार्टी कर सकती है, बीट हस्बैंड और वाइफ एज द केस में भी, चाहे वो पिटिशनर है चाहे वो रिस्पोंडेंट है, कोई भी पहली पिटिशन में चाहे वो रिस्पोंडेंट था चाहे वो पिटिशनर था, कोई भी इंसान आके पिटिशन फाइल कर सकता है प्रोवाइडेड दिस ग्राउंड इज फुलफिल्ड। उन्होंने कहा क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये ग्राउंड्स जो है सेक्शन 13(1)A की क्योंकि वो फुलफिल्ड है, तो यहाँ पे कोर्ट शुड नॉट इंक्वायर एज टू विच ऑफ द टू पार्टीज इज रियली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। कोर्ट को ये इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए कि हस्बैंड ने कंप्लायंस नहीं दिखाई या वाइफ ने नहीं दिखाई। कोर्ट शुड नॉट इंक्वायर इनटू द फैक्ट that which of the two parties is really responsible for breakdown. Although facts ये बोलते कि husband was the one who was really responsible for breakdown of marriage because he was the one who did not comply with the decree of restitution of conjugal rights. लेकिन उसके husband के जो counsel उन्होंने अपील में ये कहा कि section 13(1)A की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सेक्शन 13(1)A बोलता है कि मेयर एग्जिस्टेंस ऑफ एन अनसैटिस्फाइड डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स और जुडिशियल सेपरेशन इज सफिशिएंट इनफ फॉर द कोर्ट टू ग्रांट डिवोर्स। कोर्ट्स शुड नॉट गो इनटू द फैक्ट एज टू विच ऑफ द टू पार्टीज इज रियली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकडाउन। फैक्ट ये है कि मैरिज इररिट्रीवेबली टूट चुकी है, तो कोर्ट को ये नहीं देखना कि किस पार्टी के कारण वो टूट चुकी है, सो कोर्ट शुड नॉट इंक्वायर इनटू दैट। अब कोर्ट को ये चीज़ बिल्कुल सही लगी, यानी कि हस्बैंड के जो काउंसिल थे उनकी इंटरप्रिटेशन सेक्शन 13(1)A की बहुत सही थी एंड दैट इज द जेन्युइन एंड ट्रू इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन 13(1)A जो आज के टाइम पे भी हम फॉलो करते हैं। सो गाइस यहाँ पे फैक्ट ऑफ द मैटर क्या है मैं आपको समझाती हूँ। सो गाइस फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट कि अगर हम पिटिशनर टेकिंग बेनिफिट ऑफ हिज ओन रॉन्ग रूल अप्लाई करेंगे, जस्ट अ पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट कि अगर हम पिटिशनर टेकिंग बेनिफिट ऑफ हिज ओन रॉन्ग रूल अप्लाई करेंगे, जिस तरीके से ट्रायल कोर्ट ने अलाउ किया था, अगर उस तरीके से आप उसको फॉलो करोगे देन देयर विल बी नो ओकेजन व्हेन अ पर्सन विल बी सक्सेसफुली एबल टू फाइल अ पिटिशन, क्योंकि हमेशा उस इंसान को गलत ही माना जाएगा। जैसे कि आप चमन लाल वर्सेस मोहिंदर देवी केस के ही फैक्ट्स को ध्यान में रखो। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि अगर हम हस्बैंड को डिवोर्स दे देंगे सेक्शन 13(1)A के तहत, इट वुड अमाउंट टू गिविंग हस्बैंड दैट पर्सन बेनिफिट ऑफ हिज ओन रॉन्ग और डिसेबिलिटी, राइट। तो अगर हम पिटिशनर टेकिंग बेनिफिट ऑफ हिज ओन रॉन्ग रूल अप्लाई करेंगे देन देयर विल बी नो ओकेजन व्हेन दैट हस्बैंड वुड बी सक्सेसफुली एबल टू फाइल अ पिटिशन, क्योंकि कोर्ट हमेशा उसको गलत ही समझेगा। वाइफ ने क्या किया था, पिटिशन फाइल करी थी और उसके फेवर में डिक्री आ गई, तो वाइफ ने डेफिनेटली अगर चाहा कि मेरे कॉन्जुगल राइट्स को रेस्टिट्यूट करवा दिया जाए तो वहाँ पे वाइफ को कोई गलत नहीं समझेगा, बिकॉज शी वॉज द वन जिसने डिक्री अपनी फेवर मिली एंड शी वॉज द वन जो जेन्युइनली चाहती थी कि उसके कॉन्जुगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस रिस्टोर हो जाए। तो यहाँ पे कोर्ट को हमेशा गलत कौन लगेगा, हस्बैंड और वाइफ एज द केस में भी, और इस केस में हस्बैंड हमेशा कोर्ट को गलत ही लगेगा। सो अगर हम इस रूल को अप्लाई करेंगे 23(1)A को अप्लाई करेंगे 13(1)A पे, तो वो इंसान हमेशा ही कोर्ट को गलत लगेगा और उसकी फेवर में कभी भी डिक्री पास नहीं होगी, उसके पिटिशन को हमेशा डिसमिस किया जाएगा, क्योंकि कोर्ट ये कहेगा कि देयर विल बी नो ओकेजन व्हेन दिस पर्सन विल बी सक्सेसफुली एबल टू फाइल अ पिटिशन, बिकॉज कोर्ट उसको हमेशा ही गलत मानेगा। ऑन द अदर हैंड गाइज, अगर ये इंसान कॉम्प्लायंस दिखाता है, अगर उसने कॉम्प्लायंस दिखा दी होती तो क्या होता है, ही शैल हैव नो कॉज ऑफ एक्शन। अगर उसने कॉन्जुगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को रिस्टोर कर ही लिया, जो कोर्ट का मोटिव था कि मैरिज प्रिजर्व हो जाए, रेस्टिट्यूशन हो जाए, रिस्टोरेशन बैक हो जाए ऑफ कॉन्जुगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, और अगर वो हो जाता है देन यू नो दैट देयर हस्बैंड शैल हैव नो कॉज ऑफ एक्शन, उसके पास कॉज ऑफ एक्शन ही कोई नहीं रहेगा डिवोर्स के पिटिशन फाइल करने के लिए, क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन क्या है, नॉन कॉम्प्लायंस विद द डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। लेकिन वहाँ पे क्या हो चुका है, कॉम्प्लायंस हो चुकी है विद द डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। सो आर यू गेटिंग इट गाइस कि फैक्ट ऑफ द मैटर खुल के क्या आता है कि अगर हम ये रूल अप्लाई करते हैं, पिटिशनर टेकिंग बेनिफिट ऑफ हिज ओन रॉन्ग रूल अप्लाई करेंगे, तो कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन होगी ही नहीं जहाँ पे हस्बैंड अपनी पिटिशन फाइल कर पाएगा सेक्शन 13(1)A के तहत, क्योंकि उसने नॉन कॉम्प्लायंस दिखाई है, तो वो हमेशा ही कौन होगा, रॉन्ग्ड पार्टी होगी जो गलत किया है, एंड ही कैन नॉट बी टेकन टू हैव टेकन बेनिफिट ऑफ हिज ओन रॉन्ग और डिसेबिलिटी। सिमिलरली गाइज, अगर वो कंप्लायंस दिखा देगा देन ही शैल हैव नो कॉज ऑफ एक्शन, कोई कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं रहेगा कि वो पिटिशन किस बेसिस पे फाइल करे, क्योंकि सेक्शन 13(1)A की रिक्वायरमेंट जो है यहाँ पे पूरी नहीं होगी। सो गाइज, अब ये कॉन्ट्रोवर्सी है कि क्या सेक्शन 23(1)A एप्लीकेबल है 13(1)A पे या नहीं है।
और अगर वो एप्लीकेबल है तो वो किस तरीके से एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे गाइज एज ऑलवेज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर्ड इन द मैटर और उन्होंने कहा कि सेक्शन 23 is very much applicable on section 13 1A as it is applicable on any other provision of section 13. Section 13 subsection 1 which talks about fault grounds, subsection 2 which talks about rights exclusively available to a wife, सेक्शन 13B विच टॉक्स अबाउट डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। हर एक प्रोविजन पे सेक्शन 13 के हर एक प्रोविजन पे 23 सेक्शन एप्लीकेबल है। उसी तरीके से लाइक एनी अदर प्रोविजन सेक्शन 13 1A पे भी सेक्शन 23 एप्लीकेबल होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि वो किस तरीके से एप्लीकेबल होगा, क्योंकि अगर वो एप्लीकेबल होगा, I've told you there will be no occasion when a person will be successfully able to file a petition in the court of law because कोर्ट हमेशा उसको गलत ही मानेगा और कोर्ट को ये लगेगा कि अगर हम उसको पिटिशन उसकी अलाउ करते हैं then he will be taking benefit of his own wrong or disability। तो कहीं ना कहीं सेक्शन 23 वायलेट होगा। अब इसको हार्मोनियसली सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से इंटरप्रेट किया ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है गाइज। यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि it is not at all mandatory, it is not at all obligatory for either of the two parties to a marriage to show compliance to a decree of restitution of conjugal rights or to resume cohabitation after a decree of judicial separation। It means कोर्ट ने क्या कहा कि ये पार्टीज के लिए be it husband or wife as the case में भी किसी के लिए भी ऑब्लिगेटरी नहीं है कि आपको कंप्लायंस दिखानी है कोर्ट की डिक्री को। अगर आप नहीं भी दिखाते हो वो चीज़ रॉन्ग नहीं है गाइस। द पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट कोर्ट कहते हैं कि अगर कोई इंसान मेयरली नॉन कंप्लायंस दिखाता है यानी कि डिसओबे करता है, नहीं मानता कोर्ट की डिक्री को अंडर सेक्शन 9 या सेक्शन 10, उस चीज़ को आप रॉन्ग नहीं कहोगे विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 23 1A। सेक्शन 23 1A में जो आपको वर्ड रॉन्ग दिखता है ना वो ये वाला रॉन्ग नहीं है। जैसे कि यहाँ पे हस्बैंड ने क्या किया था चमन लाल वर्सेस मोहिंदर देवी केस में, हस्बैंड डिड नॉट मेक एनी पॉसिबल अटेम्प्ट एट रिकॉन्सिलिएशन। इट मीन्स इन अ वे और द अदर हस्बैंड ने नॉन कॉम्प्लायंस दिखाई थी कोर्ट की डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स को। तो कोर्ट ने कहा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये चीज़ रॉन्ग नहीं है विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 23 1A एंड एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट एट ऑल ऑब्लिगेटरी फॉर ईदर ऑफ द टू पार्टीज कि वो कंप्लायंस दिखाएं। अगर आप कंप्लायंस उनको कहोगे कि आप कंप्लायंस दिखाओ, इट वुड अमाउंट टू कोएसिंग पार्टीज इनटू रिकॉन्सिलिएशन। कोर्ट आपको फोर्स करेगा। अगर कोर्ट कहे कि आपको कंप्लायंस दिखानी है, इट मीन्स कोर्ट इज कोएसिंग पार्टीज इनटू रिकॉन्सिलिएशन एंड कोर्ट्स कैन नॉट डू दैट। जब पार्टीज रिकॉन्सिलिएशन नहीं चाहती हैं तो वहाँ पे कोर्ट आपको फोर्स नहीं कर सकता। अदरवाइज इट टेंटामाउंट्स टू मिसयूज ऑफ पावर बाय द कोर्ट्स। कोर्ट्स को जो पावर दी है ना रिकॉन्सिलिएशन की, उसका मिसयूज होगा अगर कोर्ट्स आपको फोर्स करेंगे कि आप रिकॉन्सिलिएशन करो। सो गाइज यहाँ पे क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट इज़ नॉट एट ऑल मैंडेटरी, इट इज़ एब्सोल्युटली ओके if either of the two persons is not willing to cohabit, to resume cohabitation or to show compliance to a decree of restitution of conjugal rights, and that is no wrong within the meaning of section 23 1A। सेक्शन 23 1A में जो आपको रॉन्ग वर्ड दिखता है ना वो ये चीज़ नहीं है, उसकी इतनी नैरो इंटरप्रिटेशन हम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे रॉन्ग का मतलब है समथिंग वेरी ग्रेव, वेरी ग्रेव, वेरी कन्विंसिंग। कोई ऐसा मिसकंडक्ट हो ऑन द पार्ट ऑफ ईदर ऑफ द टू पार्टीज विच जस्टिफाइज डिनायल ऑफ रिलीफ। आई होप गाइस आपको समझ आए। तो कोर्ट ने कहा कि मेयर नॉन कॉम्प्लायंस with a decree of restitution of conjugal rights or mere disinclination to agree to an offer of reunion so as to start restore cohabitation with between the parties is no wrong within the meaning of section 23 1A। To be wrong within the meaning of section 23 1A, it has to be something more than mere non-compliance or mere non-resumption of cohabitation. It means it has to be something, a misconduct serious enough, very grave, very weighty, very convincing to justify denial of relief by the court। I hope आपको ये समझ आ गया कि इस चीज़ की इतनी नैरो इंटरप्रिटेशन हम नहीं कर सकते हैं। पार्टीज आर फ्री नॉट टू comply with the court's decree। कोर्ट की डिक्री को आप नहीं comply करना चाहते, you are free to do that, वो चीज़ रॉन्ग नहीं होगी। इट मीन्स कोर्ट ने कहा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरीके से इन दोनों सेक्शंस को हमने इंटरप्रेट करना है साइमल्टेनियसली। यहाँ पे सेक्शन 23 1A इज़ वेरी मच एप्लीकेबल ऑन सेक्शन 13 1A, लेकिन उस तरीके से एप्लीकेबल नहीं होगा जिस तरीके से ट्रायल कोर्ट ने दिखाया था चमन लाल वर्सेस मोहिंदर देवी में। वो चीज़ गलत थी। यानी कि जो हस्बैंड का काउंसिल था जब उसने अपील किया कोर्ट में, तो जो इंटरप्रिटेशन उसने दिखाई थी सेक्शन 13 1A की, वो इंटरप्रिटेशन बिल्कुल सही थी और ट्रायल कोर्ट का डिसीजन उस केस में गलत था। आई होप गाइस आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका है। यहाँ पे कोर्ट ने इसी तरीके से कहा कि इस तरीके से आपको इनको हार्मोनियसली एक दूसरे को देखना है। इट हैज़ टू बी, ये एप्लीकेबल होगा। अगर यहाँ पे पिटिशनर गलत होगा तो उस इंसान को अपना बेनिफिट नहीं लेने दिया जाएगा। ही कैन नॉट अनजस्टली एनरिच हिमसेल्फ, लेकिन वो रॉन्ग बहुत ही ज़्यादा कोई अल्टीरियर मोटिव होना चाहिए, बहुत
बहुत ही ग्रेव, बहुत ही वेटी, बहुत ही कन्विंसिंग होना चाहिए। मेयर नॉन कॉम्प्लायंस कैन नॉट बी टर्म्ड एज रॉन्ग, ये बहुत ही नैरो इंटरप्रिटेशन हो जाएगी सेक्शन 23(1)(a) की। सिमिलरली गाइज यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ किसको डिस्कस किया है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स को डिस्कस किया है। अगर मैं दिखाऊं जुडिशियल सेपरेशन की भी बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल गाइज, हस्बैंड वाज लिविंग एन अडल्ट्रस लाइफ, वो अडल्ट्री लीड करता है कंटिन्यूअसली, वो अडल्ट्रस लाइफ फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम देख रहा है। अब वाइफ ने क्या किया, पिटिशन फाइल कर दी सेक्शन 10 के तहत, यानी कि जुडिशियल सेपरेशन। इफ यू रिमेंबर, जो ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स है वही ग्राउंड्स फॉर जुडिशियल सेपरेशन भी होते हैं। तो वाइफ ने क्या किया, एडल्ट्री के ग्राउंड पे कोर्ट में एक पिटिशन फाइल करी कि मुझे जुडिशियल सेपरेशन दे दिया जाए। अब गाइज सिमिलरली अगर रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन नहीं होगी फॉर अ पीरियड ऑफ अ ईयर और मोर, तो वहां पे क्या होगा, वाइफ और हस्बैंड एज द केस में भी ईदर पार्टी कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ एंड सीक डिवोर्स अंडर सेक्शन 13(1)(a). वही हुआ कि वाइफ ने क्या किया, पिटिशन ले ली सेक्शन 10 के तहत, उसको डिक्री उसके फेवर में आ गई। लेकिन गाइज 1 साल बाद हस्बैंड कोर्ट में चले गए, ही कंटिन्यूड टू लिव एडल्ट्रस लाइफ इन दैट कोर्स ऑफ टाइम। 1 साल में भी वो हटे नहीं, उन्होंने एडल्ट्रस लाइफ ही कंटिन्यूड टू लीड, यानी कि देयर वाज नो चांस ऑफ रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन बिटवीन द पार्टीज, रिज्यूम तो नहीं हो पाई उनकी कोहैबिटेशन। तो हस्बैंड ने क्या किया, सिमिलरली जैसे चमन लाल वर्सेस मोहिंदर देवी में हो, इस केस में भी ऐसा ही हो कि हस्बैंड ने क्या किया, कोर्ट में गए, सेक्शन 13(1)(a) के तहत पिटिशन फाइल करी और कहा that there is non-resumption of cohabitation after the decree of judicial separation for a period of a year or more, इसीलिए मुझे क्या है, डिवोर्स दे दिया जाए। तो कोर्ट ने यहाँ पे भी कहा कि चमन लाल वर्सेस मोहिंदर देवी में जो ट्रायल कोर्ट ने किया था वो चीज़ हमें नहीं करनी है। जस्ट बिकॉज हस्बैंड डिड नॉट comply with court's decree of judicial separation doesn't mean he is in wrong, वो गलत नहीं है। Wrong means something, a misconduct or an act serious enough to justify denial of relief, बहुत ही ग्रेव, बहुत ही वेटी, बहुत ही कन्विंसिंग। कोर्ट ने कहा कि continuance of the same offense or wrong on the basis of which a decree of judicial separation was passed cannot inhibit a person to relief। यानी कि यहाँ पे आप एक चीज़ समझो कि वाइफ ने एडल्ट्री के ग्राउंड पे क्या किया था, जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री को पास करवाया था। कोर्ट कहते कि अगर वही ऑफेंस जिसके बेसिस पे आपने जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री ली थी, अगर वही ऑफेंस कंटिन्यू करती है अदर पार्टी, यानी कि जो गलत है, फॉर एग्जांपल हस्बैंड इन दिस केस, तो दैट कैन नॉट बी अ रॉन्ग विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 23(1)(a) एंड दैट कैन नॉट इनहिबिट द अदर पर्सन फ्रॉम रिलीफ अंडर सेक्शन 13(1)(a। यानी कि अगर वो एडल्ट्री को छोड़ के क्रुअलिटी कमिट करता, यानी कि कोई भी और मैट्रिमोनियल ऑफेंस करता, तो वो एक मिसकंडक्ट होता सीरियस इनफ टू जस्टिफाई डिनायल ऑफ रिलीफ कि यू वर बीइंग क्रूअल टू योर वाइफ और अब आप चाहते हो कि आपको सेक्शन 13(1)(a) के तहत डिवोर्स मिल जाए, वो चीज़ नहीं होगी। लेकिन अगर दोबारा से कोई और मैट्रिमोनियल ऑफेंस कमिट नहीं हुआ एंड द सेम मैट्रिमोनियल ऑफेंस इज बीइंग कंटिन्यूड ऑन द बेसिस ऑफ विच अ डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन वाज पास्ड, तो वहाँ पे वो एक रॉन्ग नहीं है विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 23(1)(a). आई होप गाइस आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमने ये डिस्कस किया कि सेक्शन 13(1)(a) पे सेक्शन 23(1)(a) एप्लीकेबल है, लेकिन इसकी एप्लीकेबिलिटी में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी थी। उस चीज़ को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया और कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि रॉन्ग वर्ड को इंटरप्रेट करो, लेकिन नॉट इन अ वे जिस तरीके से आप कर रहे हो उसको इतनी नैरो इंटरप्रिटेशन हम नहीं देंगे, बिकॉज इट इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर द पार्टीज कि आपको कोर्ट की डिक्री को फॉलो करना ही करना है। सेक्शन 9 या सेक्शन 10 के तहत अगर कोई भी डिक्री ऑफ डिवोर्स आती है, डिक्री आती है इधर फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स और फॉर जुडिशियल सेपरेशन, इट इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर द पार्टीज। गाइस इफ यू रिमेंबर, ये एक मैट्रिमोनियल रिलीफ है जो पार्टीज को दिया जाता है। नाउ इट इज अप टू द पार्टीज कि अगर आप मानना चाहते हो या नहीं मानना चाहते। कोर्ट सिर्फ और सिर्फ एक अटेम्प्ट करता है रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन द पार्टीज। कोर्ट कोशिश करते हैं कि शायद से रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन हो जाए या फिर कॉम्प्लायंस हो जाए विद द डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, और शायद से मैरिज उनकी उसी तरीके से इंटैक्ट रहे जिस तरीके से पहले थी। So it is mere attempt at preservation and protection of a social institution of marriage. इससे ज़्यादा कोर्ट कोर्स नहीं कर सकता पार्टीज को into reconciliation. Courts cannot do that. अब ये पार्टीज पे कि उन्हें मानना है नहीं मानना, इसलिए अगर वो नहीं भी मानते वो चीज़ रॉन्ग नहीं है विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 23(1)(a। रॉन्ग का मतलब क्या, मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल समझाई थी जब हमने सेक्शन 23(1)(a को डिस्कस किया था कि फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड ने एडल्ट्री कमिट करी, वाइफ ने उसको डिजर्ट कर दिया। अब हस्बैंड कोर्ट में जाके नहीं बोल सकता कि मेरी वाइफ ने डिजर्शन करी है इसीलिए मुझे डिवोर्स दे दिया जाए, बिकॉज ही वॉज द वन जिसके कारण वाइफ ने डिजर्शन करी, सो ही कैन नॉट टेक बेनिफिट ऑफ हिज ओन रॉन्ग और डिसेबिलिटी। दिस इज समथिंग रॉन्ग विद इन द मीनिंग ऑफ 23(1)(a and not mere compliance with the decree of restitution of conjugal rights or disinclination to agree to an offer of reunion after a decree of judicial separation. I hope guys आपको ये point clear हो चुका है. Still guys, if you have any doubt pertaining to simultaneous interpretation of these two sections, please feel free to comment in the comment box. I'll be replying to all your doubts and queries.
Till then guys, keep learning, keep shining, stay safe and bye-bye.